Hey everyone, this is Jigyasa, आपकी host और दोस्त on KU Pod Squad. Welcome to the episode of KU Pod Squad. Welcome to the episode, Kanishk. Thank you so much. So we'll start by having a knowledge about you. आप हो कौन और आपका इंडस्ट्री में प्लेस क्या है? Firstly, मैं alumni हूँ KU का, so this is a very great opportunity for me to come back and deliver this podcast. And जब से कर्नावती में था, so from that particular time I was inclined towards filmmaking, and this institution played an important role there. So yeah, from the journey started from here, and now I guess it's a circle today that I'm coming here and giving insights on filmmaking, not only here but other educational institutions, and also teaching students about filmmaking and how it is done. Wow, that's great. So in the industry, what all are your major fields that you get into? Well, I am mainly into editing, Okay. but then while the journey started, I was not knowing much about it, and therefore I dived into assistant direction, I dived into production, so everything I explored, and then I एक thin line करना होता है, so वो thin line funnel करके I stepped in editing. Right now I am an editor, Okay. but I can do other things as well in filmmaking. Okay. So yeah, this is the thing. Got it. So what is the most challenging task as a video editor? Because there are, a lot of, everything is basically dependent on editing. So अगर किसी ने अच्छा बोला भी नहीं है तो आप उसको दिखाओ अपने तरीके से सकते हो. So what's the scope in that currently, and how do you manage that? See, firstly, if we look upon videos, what is video? Video is a portrayal of emotions Correct. and feelings. And back then, before 19th century even, if you look, so all the artists and everyone was painting it, right? Correct. Be it stone paint or whatsoever. So it was a kind of portrayal of what they felt, what was going on. Even in Mahabharata, we had this thing that the portrayal of Mahabharata was shown to someone. I will not take name, but yeah, shown to someone, and then whole Mahabharata was seen by that blind man, right? So, just like that, the feelings which a human have will be portrayed in a visual format. Correct. Can be a graphic, can be a video. So this is what I feel about this industry, that it is a very beautiful industry. Now, whatsoever feeling or whatsoever emotions we carry is portrayed by this visual, and that visual platform right now in today's world is so strong that it can impact and create a huge psychic development. Change of perception. Yes, change of perception in human nature or human development, and mainly specifically in children's right now. And those who are students who are learning new tech or any new stream. So these days, they are all focused on video-based lectures. Why? Because of the development of human psychology, particularly on visual patterns and formats. So this is why first reason that I chose this field. And then what scopes are there? If you say, then scopes are very huge. Very huge. It depends on an individual, how deep he is into in his passion. Also, what type of skills he wants to upgrade daily. Because video format में cinematography ले लो आप, editing ले लो आप, या फिर उसका production ले लो, तो हर एक चीज़ में एक प्रोसेस एक फॉलो करनी पड़ती है. जो प्रोसेस आज के ज़माने में जो भी फिल्म इंडस्ट्री में हो या तो कंटेंट इंडस्ट्री में हो, वो कहीं ना कहीं एक डाइल्यूट हो रही है. जो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोसेस था वो, तो वो एक चीज़ आई पर्सनली फील के वहाँ पे लैग हो रहा है. बाकी स्कोप ऑफ दिस फील्ड इज़ वेरी ह्यूज, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड इज़ ऑल्सो ह्यूज. सो या दैट इज़ द केस. Okay, so from this statement of yours, I got to know कि कितना बड़ा perception, this is a very huge thing जो लोगों का पूरा perception ही change कर सकता है. So what are the
some of the good things or bad things about the industry, or maybe you are into Gujarati industry film. Yep. तो उसके बारे में what do you have to say? Well, this can be a very controversial thing again, but yeah, there are certain things जो बहुत ही नेगेटिव वे में जा रहा है Okay. अभी, एंड देर आर सर्टेन थिंग्स जो बहुत ही पॉजिटिव टोन्स और वेज प्रोसेस में जा रहा है इन गुजराती इंडस्ट्री स्पेसिफिकली. एज आई सेड प्रोसेसेस, तो प्रोसेस को कट डाउन करके और उसमें आप लोग डिलीवर अगर कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग नाउ अ डेज. बट आई डोंट बिलीव इन दैट अगेन. वाई? बिकॉज जहाँ पे हम प्रोसेस कट डाउन कर रहे हैं वहाँ पे कट डाउन करना मतलब? ओके, प्रोसेस कट डाउन करना मतलब जैसे पेपर वर्क्स हो गया, तो फिल्म कोई भी, फॉर एग्जांपल हम फिल्म बना रहे हैं, फिल्म में बनाने के लिए वी विल गो फॉर फर्स्टली ऑल द शीट्स. नाउ शीट बी इट डायरेक्शन शीट, कॉल शीट्स, शॉर्ट डिवीजन, सो वो सारी शीट्स होती है, राइट? वो पहले आप प्रिपेयर करोगे, उसके बाद उसका मूड बोर्ड बनेगा, एंड देन यू विल जंप ऑन टू प्रोडक्शन विच इज़ शूटिंग, राइट? यहाँ पे अभी जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, people are not focusing on that thing and they are directly सब मन में है शूट करना है, ओके डन लेट्स शूट. Okay. तो वो एक चीज़ जो हो गई है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है, और उसकी वजह से जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री अगर देखे या एक कोई भी एक फिल्म देखे, इवन आज भी अगर हम ये पॉडकास्ट को भी देखें, तो वी हैव लाइटमैन्स, वी हैव साउंड, वी हैव होस्ट, राइट? तो हर एक लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो वो नहीं, उसका मैटर ही नहीं करेगा, और वो जो इम्पैक्ट करना चाहिए वो इम्पैक्ट ही नहीं आएगा. एंड देन यू से कि फिल्म्स नहीं चल रही है, देन यू से कि हमारी फिल्म्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. कहाँ से सपोर्ट? You cannot achieve perfection. एग्जैक्टली परफेक्शन वहाँ पे आता ही नहीं है. Correct. आई एम नॉट टेलिंग कि गुजराती फिल्म्स परफेक्ट नहीं है, बट प्रोसेस माल फंक्शनिंग है. करती है. Yep. पर दूसरा एक चीज़ है, एवरीबडी नोज दिस, बट ग्रुपिज्म बहुत है. सो ऑल द स्टूडेंट्स और जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेट मी टेल यू, एक ग्रुप होगा, उसमें आप अगर घुस गए तो वही ग्रुप में फंसे रहोगे. बाहर जाने की ट्राई करोगे तो ना वो ग्रुप आपको लेगा और ना ही आप दूसरे ग्रुप में इन्वॉल्व होगे, till the time you have that talent or you have that guts to face the, you know, harsh realities. Yup, harsh reality. So this is very bad, I feel. And इसीलिए मैंने मेरा खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट किया. Okay. So this journey of my production house was totally different. पहले I thought कि मैं जो ह्यूमन इमोशंस है, जो बिकॉज मैंने कोविड के टाइम पे ये स्टार्ट किया था फर्स्टली, सो दैट टाइम आई थॉट कि मैं रॉ इमोशंस दिखाऊंगा, आई विल बी इनटू डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल द थिंग्स. बट देन ग्रेजुअली व्हेन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, देन आई रियलाइज कि नो, देयर इज सर्टेन थिंग्स विच आई नीड टू, यू नो, inculcate in myself, develop in myself, and then jump on to what I want to deliver. Got it. और उसमें I have done bads, I have done goods. So everything, it's a part and parcel of life, you know. So it's like that. We have to do it, and we need to do it at certain level of time. But till the time we know, we should not make it a habit of doing false practices in whatsoever profession we are. So that's the case. So again, Ganesh Theory of Films जब स्टार्ट हुआ तब ऐसा कोई थॉट नहीं था, लेकिन जब मैं हार्श रियलिटी में आया, मैंने ये फेस किया खुद ने. बिकॉज राइट नाउ एज यू मेंशन कि 8 फिल्म्स, म्यूजिक अवार्ड्स, लाइक म्यूजिक वीडियोस एंड अवार्ड्स, सो ये सारी चीज़ें अभी आप बता सकते हो, बट इस सारी प्रोसेस, ये जो चीज़ें मुझे मिली उसके पीछे की प्रोसेस में बहुत सारे धक्के, बहुत सारे डाउनफॉल्स, बहुत सारे एलिगेशंस, एंड एज अ मेल सोसाइटियल वाइज ये चलता है. Okay, correct. बट दोज वर फीमेल फिल्म मेकर्स. उन लोगों पे जब वो लोग जब ये फेस करेंगे तो उन लोगों पे भी कितना मेंटल प्रेशर पड़ेगा. सो इफ वी स्पीक अबाउट साइकोलॉजिकल थिंग ऑल्सो, मेंटल हेल्थ इज नॉट अ स्टेबल थिंग इन दिस इंडस्ट्री. एंड वी हैव केसेस, वेरी फेमस केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. इट वॉज कवर्ड बाई फ्यू हेडलाइंस, बट
insider story says that it was a mental issue thing, which is very bad, which is And very common among unfair. Yeah. people in this industry. Yep. And even in this industry. And therefore, to provide platforms all, to provide right opportunities and right environment, I created my production house. And through my production house, I prefer and chose the people who actually want to learn the process and move, and not fall into false practices, malpractices, or any other shortcut methods, Okay. so that they learn, fully wholesome. Yeah. So since you have created this from the scratch by yourself, Yep. पूरा experience लेके, so if one person wants to get into the industry, so how can, for example, me, I have no knowledge about it. So how can I get into the space wherein, I can build up space for myself? Okay. So, two or three things what we can do is, while I was learning, I learned it from YouTube. Okay. So, everything is self-learned. And I was in journalism in KU. So, pursuing journalism as a degree and doing filmmaking as a profession or passion was two different things. Correct. So, it backed me up. My degree backed me up. But right now, we are fortunate, or students are fortunate, that they are having degrees and departments for filmmaking. Mm-hmm. And this is very good thing for them to start with. Second thing is YouTube and other courses available on many platforms, be it Coursera or anywhere, Udemy. Like, there are many platforms which are providing basic and advanced level of filmmaking or content creation journey. Plus, they can even start from scratch, work with the production houses, Okay. right production houses. How to find those right production houses? फर्स्टली अगर कोई आपको बोलता है कि आपको हमारे साथ ज्वाइन होना है, ठीक है, आपको उनको पे करना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी वेरी Big Common. flags. बिग रेड फ्लैग एंड वेरी कॉमन रेड फ्लैग. Mm-hmm. बहुत जगहों पे स्पेशली गर्ल्स के साथ ये हुआ. सेकंड, मेल्स में क्या होता है, वो लोग उनको सिस्टम देंगे, ये सब देंगे. तो मतलब गैजेट जब आते हैं तब मोस्टली ऐसा माना जाता है कि मेल्स आर वेरी अट्रैक्टेड टू गैजेट. मैं ऐसा नहीं मानता. बट जब गैजेट्स आते हैं तो लड़के वहाँ पे पिघल जाते हैं, और वहाँ पे ऐसे ऐसे गैजेट्स उनको इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो जैसे कि मोस्ट प्रीमियम गियर you get like recently released gimbals, you get cameras, full body, like camera body with lenses, you get a Mac का laptop and PC, and you have to just sit and do editing, but आपको हमको पे करना पड़ेगा 50,000 per month. Oh, So this is the case. got it. ये सारा मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा या नहीं एक्सपीरियंस, ये चीज़ भी मैंने एक्सपीरियंस करी है. इसलिए दिस टू आर रेड फ्लैग्स कि ऐसा कोई गैजेट का आपको लालच दे के आपको अंदर ले ले, या फिर ऐसा बोले कि आप पे कर दो, हम आपको सिखाएंगे ये चीज़. प्रोडक्शन हाउसेज ये नहीं करते. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास आपको डिग्री होती है देने के लिए, तो वहाँ पे आप अगर पे करके कुछ सीख रहे हो तो दैट इज़ होल डिफरेंट थिंग. बट Correct. दिस आर प्रोडक्शन हाउसेज, दे मेक फिल्म्स, दे डू बिजनेस, दे आर नॉट वायबल और लायबल टू charge you. Correct. So this is the case. This is how you can find right production houses, right? And what are the platforms? For example, LinkedIn हो गया, Instagram हो गया. तो ऐसे platforms पे हम कैसे approach कर सकते Exactly. मैं उसी पे आ रहा था. So दूसरे ये जो LinkedIn आपने बताया, right now that is a very powerful tool. हैं? And LinkedIn पे इतने सारे connections easily बन जाते हैं, और वहाँ से इतने सारे projects हम fetch कर सकते हैं if we have that passion or patience. This field is about patience and dedication. 2 words only. Talent अपने आप उसमें build-up होता है, Correct. क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें born talent की need हो. This is a technical aspect or technical side of something visual. Got it. तो no need of talent. First सीख सकते हैं, ठीक है. बट वो सारी चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ेगी उसके लिए फर्स्टली आपको एक बेसिक नॉलेज हो तो आप बात कर सकते हो. बेसिक टर्म्स
जैसे फिल्म मेकिंग में जो शूट करते हैं उनको सिनेमाटोग्राफर्स बोल रहे हैं, राइट? जो एडिट करते हैं उनको वीडियो एडिटर्स बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म मीडिया। थोड़ा सेल्फ लर्न थोड़ा सा होमवर्क करके आप चाहो और किसी को भी पिच करोगे कि आई हैव दिस मच नॉलेज एंड आई वांट टू ग्रो इन दिस, तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो दिस कैन बी अ वेरी गुड अप्रोच लिंक्डइन गॉट इट। फॉर अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो या this can be a very good approach. I've done that many times, and I've got responses like this, even the clients. ठीक है, so would you currently hire some interns under you, maybe from college or from other college or university? Oh, yes, I am badly in need of interns and video edit. तो मैंने बहुत बार स्टोरीज डाली है ऐसा, एंड लास्ट 1 महीने से मैं बहुत ही परेशान हूँ। क्यों? सी, इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड मैं करना चाहूँगा। फर्स्टली, जो भी इंटर्न्स है या फिर जो भी नए वीडियो एडिटर्स या जो भी नए स्टूडेंट्स जो ये फील्ड में से आ रहे हैं, नेवर अंडर पे योरसेल्फ फर्स्टली, राइट? एंड सेकेंडली, अगर आपको इंटर्नशिप करनी है इस फील्ड में तो मेक श्योर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे वो चीज़ें सिखाई जा रही है जो चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए। जहाँ जाना इज़ अ टास्क अगेन। वाई? बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट्स। वहाँ पे इक्विपमेंट्स हाई एंड होते हैं। लोग कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप लोग शूट भी नहीं कर सकते टिल द टाइम योर परमिशन इन योर फील्ड इज क्लियर, करेक्ट, राइट? तो इट इज़ अ टास्क देन। तो इजीली एक्सेसिबल नहीं है ये चीज़। इसलिए जब भी इंटर्नशिप कर रहे हो, सी, आई एम ओपन, आई कैन अलाउ एनीवन who wants to intern and learn video editing or filmmaking. We are already on some projects. I can include you guys. But internship में firstly मेरा नहीं, कहीं पे भी पेमेंट नहीं मिलेगा because they are teaching you, okay? Correct. Secondly, they will also not ask you for payment. They will give you allowances in that case interns में. Second thing, अगर आप लोग हायर हो रहे हो तो मेक श्योर आप अंडर वैल्यू ना करो, because this case I like very recently I've seen in many students or graduates who are freshly graduating, कि जाते हैं and if I am your student and you are my employer and if you say कि video editor की position हम hire कर रहे हैं and your salary is 10,000, तो me being a freshly graduate, okay sir, okay ma'am, I will join. कोई questions नहीं, कुछ नहीं पूछेगा। वो बंदा डायरेक्टली ही विल बी अ कॉर्पोरेट रैट, और वो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर होगा वो उससे इतना काम करवाएगा। जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है वैसे ये डिस्गाइज्ड वर्क कल्चर हो गया, जबकि इसकी वैल्यू ही बहुत ज़्यादा है आज की डेट। एक्चुअली जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे तुम उस बंदे को एलोकेट कर रहे हो, और जो वैल्यू उसकी है उसको ना समझ के जो नहीं करने वो सारे काम कर रहा है। Okay. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एजेंसीज है, इवन MNCs, बहुत सारी MNCs में मैंने देखा है कि दे हैव वीडियो एडिटर्स एंड ग्राफिक डिजाइनर्स ऑल इन वन, और उनकी सैलरी होती है 25,000 30,000 ओनली। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये लोग। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी लोग तक ये मैसेज जाएगा, आई वुड रियली वांट टू से डोंट अंडर पे प्लीज़, क्योंकि आप अंडर पे करोगे तो जो हमारी इंडस्ट्री है वो आपको फ्री तक काम करवाएगी, और बाद में यू कैन नॉट कंप्लेन दैट कि वी आर नॉट गेटिंग वर्क। प्रोजेक्ट्स होंगे पार्ले एग्रो के, किया शोरूम्स, ऑडी, मर्सिडीज, सबके प्रोजेक्ट्स होंगे, बट सारे वैल्यू मनी ज़ीरो, राइट? सो दिस थिंग हैपन्स। और नॉर्मली इफ यू सी, जैसे रील्स हो गया, रील्स इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग नाउ डेज, राइट? एंड इट इज़ लाइक इजीली ट्रेंडिंग। तो आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जिनको सबटाइटल वाली रील्स पसंद है, कि वो हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में सबटाइटल्स आएंगे। तो आई एम लाइक ओके चलो लेट्स डू। नाउ माई रेट आई हैव सेड in thousands, which is very normal in market, Okay. aggregate market.
कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ 500 रुपये में वो रील होती है, और अगर हाईएस्ट उसका प्राइस देखा जाए तो दैट पर्टिकुलर रील विथ सबटाइटल्स एंड बेसिक एनिमेशंस, जैसे हम आज बोल रहे कर्नावती यूनिवर्सिटी, तो कर्नावती यूनिवर्सिटी अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऊपर मेरे सर के ऊपर अगर स्पेस है या फिर यहाँ पे स्पेस है तो वो वहाँ पे लोगो आएगा। तो बेसिक एक एनिमेशन, स्टिकर्स एंड सबटाइटल्स, इतने में हाईएस्ट पेइंग इज 10,000। एंड फ्रेशली ग्रेजुएट्स और पीपल जिनको क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग 250 to 500 फॉर द सेम रील। So you see the difference, right? कहाँ 250 और कहाँ पे 10,000। करेक्ट। और ये दोनों के बीच में अगर आप चार्ज करोगे तो आपको नेगोशिएट करेंगे तो चार्ज देयर ना, व्हाई यू आर चार्जिंग 500। मैं आपको बता रहा हूँ सारे रेट्स मार्केट के, राइट? तो पहले तो मार्केट को जानो। अगर आप लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हो तो मार्केट को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वन मैसेज आई वुड लाइक टू गिव। बाकी लर्निंग के लिए लिंक्डइन एंड यूट्यूब एंड अदर इंस्टीट्यूशंस आर बेस्ट। वहाँ से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको आइडिया आता जाएगा। गॉट इट। सो जैसे हम देख रहे हैं आजकल बहुत ट्रेंड है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, हर कोई आजकल अपने आप को प्रमोट करने के लिए दे पुटिंग अप रील्स एंड कंटेंट क्रिएशन में सब जा रहे हैं। व्हाट इज द स्कोप इन दैट? फॉर एग्जांपल अगर कोई माइक्रो लेवल इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनके लिए आज की डेट में क्या स्कोप है अदर देन कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप? तो हाउ कैन पीपल ग्रो विद दैट? Very nice scope. Again, content creation is very beautiful thing. Too beautiful. Because you're showing one product or one service or thing in a very creative and a beautiful way. You have, first point, you have got freedom of creativity. Second point, you have got freedom of your locations, not bounded by it. Then third, कोई भी bizarre idea भी हो ना तो भी it can work. You don't need specific and special mindset कि अगर ये करना है तो इसके लिए ये प्रोसेस होगी, ये चीज़ करनी पड़ेगी। एंड दैट प्रोडक्ट है, किया, शूट, थिंक किया, ओके, इम्प्रॉम्प्ट कुछ आइडिया है, डू इट। सो कंटेंट क्रिएशन इन दैट वे इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड फ्री। अगेन, शूट करना कैमरा से, फ़ोन से, ये अगर कोई किसी का क्वेश्चन है, डजेंट मैटर ब्रो, सब चले तो सब चलेगा, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। कंटेंट क्रिएशन में वर्ड ही बोल रहे, कंटेंट क्रिएशन। करेक्ट। तो कंटेंट इज द किंग। जब तक तुम्हारा आइडिया तुमको बेस्ट लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट थिंग, डू इट। ओके। पब्लिकली आप पोस्ट करो, डू इट, नॉट एन इशू, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट ओवर इट। बिकॉज अगर आपका कंटेंट बाहर जा रहा है और लोगों ने वायरल भी कर दिया, बट यू मस्ट चेक कमेंट्स। आप उसको रिप्लाई ना दो एज अ इन्फ्लुएंसर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, दैट्स ओके, बट यू शुड चेक कमेंट्स। बिकॉज कमेंट्स में बहुत ही रॉ कमेंट्स बहुत बार आ जाती है और नेगेटिव्स भी आती है, बट वी शुड नॉट फोकस देयर बिकॉज दैट विल बी देयर। ये पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दैट विल बी देयर, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स जो होगी या कमेंट्स होगी उसको हम कैसे इनकलकेट कर, यस एग्जैक्टली, तो उसको हम कैसे उसमें इनकलकेट करें, एंड देन चेंज आवर कंटेंट, देन चेंज आवर टॉक, लाइक दैट। सो दैट कैन बी डन, बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नाउअडेज आफ्टर, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, सो बहुत सारी कंपनीज हायर करती है ग्रुप ऑफ पीपल। ओके। दोज ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स लाइक भुवन बाम और समवन एल्स, दे ऑल आर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो ग्रो कर रहे, जिनकी ऑडियंस ऑथेंटिक है, अराउंड 1,000 to 5,000-6,000 max. Okay. So I guess this is the category of micro influencers as far as I know, but they are doing good. They are getting paid even. So कोई भी नॉर्मल, अगर कोई सिटी मतलब टायर ए में नहीं बट टायर सी में रह रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई शॉप है जो डिजिटली अपना प्रेजेंस बना रहा है और उसमें अगर वो लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई के बाहर कोई ऐसी शॉप है, उनका एक छोटा सा शॉप है, उनको अगर वो कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। उनके लिए उनका एक डिजिटल प्रेजेंस बन रहा है। यू नेवर नो वो कंटेंट कहाँ तक जाएगा और वहाँ से कौन परचेज करेगा। कोई ऐसी चीज़ आ गई जो कोई एक फिल्म में बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट करेगी,
और वो एक ही है, एज इन सप्लाई क्वांटिटी एक ही है, तो वो बंदा जो बेच रहा है वो डिमांड सप्लाई चेन से जब बिजनेस पीओवी से वो खेलेगा तो उसको कितना फ़ायदा होगा, एक सिर्फ रील से, और वो रील होगी कंटेंट के ऊपर बेस्ड जो कि है अपना हाउ वी आर कंपोजिंग दैट कंटेंट, और वो चीज़ हो गया माइक्रो इन्फ्लुएंसर के ऊपर जो फ्रीली कुछ भी कभी भी कर सकता है। मैं घर में बैठ के उल्टे पैर भी वो कंटेंट शूट कर सकता हूँ और वो शॉप में जाके भी वो कंटेंट कर सकता हूँ टिल द टाइम आई एम क्लियर व्हाट आई हैव टू डू विथ माय फोर्टे, माय नीश एंड माय टोन ऑफ लैंग्वेज एज अ ब्रांड और एज अ इन्फ्लुएंस। करेक्ट, सो वेरी गुड। गॉट इट। सो एट योर टाइम इन कर्नावती यूनिवर्सिटी, सो जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सेशंस होते हैं, उनमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, एंड हाउ डिड दोज शेप यू टू बिकम हु यू आर राइट नाउ? Well, as I earlier said, AU plays a very important and vital role in my development, and बहुत सारे sessions यहाँ पे तो like I have attended. Like one of the best session which I remember is of Vijay Vikram Singh Okay. in out of syllabus chapter of USLM. As my department was USLM, although we were allowed to, go and hop into any other events also. That's correct. But in that particular session, Vijay Vikram Singh, we all know he's the main voice behind Big Boss. And he taught the clarity and tonation, like how to give that clarity and tonation of voice and where to emphasize. Now, as a English medium CBSE student, many people know how to read. But when it comes to voicing or voiceover, that insights were very important, and that played a very important role in my industry right now. Like it's playing very important role in my industry right now. So that particular session I really like. Okay. And there are many others. Soft skills हो गई या कोई हार्डकोर एक टेक्निकल स्किल हो गई. This institutions like USLM or KU has given me many things, and वही many things की वजह से I have become an asset of KU and KU has become my asset, and we each other as an institution and a person have back of each other. Yes, and then you're coming back and yeah, the pod's gone. Oh yes, it's really beautiful how our journey has been, me and my college journey KU, because That's amazing. yeah, that day one I was question marked. Last day I was like क्या करना है, okay ये करना है, चलो कर लेंगे. अरे वाह. So this was the overall development. डे वन को मैं क्वेश्चन मार्क ही था, मैं क्या करूँगा, मैं डिपार्टमेंट ये चूज़ कर रहा हूँ लिबरल आर्ट्स, मुझे करना है जूलॉजी, बट मैं इसमें आया हूँ ये सोच के कि मैं कुछ न्यूज़ का या कुछ मीडिया का कुछ पढ़ के आई विल गो इन जूलॉजी, जंप इन जूलॉजी, एंड देन इट इज़ टोटली गिविंग मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, शेप्ड माई आइडेंटिटी, एंड राइट नाउ आई एम हियर. सो या. That's amazing. And is there anything that you would have done differently in your college time? Maybe related to creativity or personally, any personal experience, anything? Differently, I guess no. Because whatever was happening, it was happening good. Again, with this question, one incident I'm remembering. I have faced many allegations here in KU Okay. by the students that you are a very big opportunist. And I was like, why? What wrong I have done? That's how it's supposed to be. Exactly. And right now, people are waiting for right opportunity कि ये कुछ आएगा तब हम देखेंगे करेंगे, but no, you have to be on the go. Yeah, and you have to grab the opportunity. Exactly. And you never know what opportunity is this. You will feel like, अच्छा ये पानी की बॉटल है, ठीक है, बट ये ही पानी की बॉटल में यहाँ कैमरा के सामने लेके उसको मैं पढ़ रहा हूँ और ये लुक दे रहा हूँ, और ये क्लिप अगर वायरल हो गई और इन लोगों ने मुझे एम्बेसडर या एक रील बनाने को दिया तो कैन बी एन अपॉर्चुनिटी. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. Correct. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट. सो ये एलिगेशन जो मुझे लगे थे वो मुझे बहुत प्यारे लगने लगे थे.
That's why it's a no. That I would not like to change it because KU, अगर आप institution के बारे में बात बोल रहे हो तो KU has evolved a lot. Correct. Nothing needs to be changed. It has evolved a lot. Yes, I regret that I'm not here right now as a student because many more facilities are provided to them. Correct. That also includes AI. Yes, exactly. And recently, like being an alumni, we get mails about alumni association updates, the sessions, and everything. But वो alumni होके यहाँ पे आना और एक student होके वो चीज़ को experience करना is totally different game. Correct. And it's so, overwhelming, yeah. So yeah, that is the case. So no, nothing to change, but yeah, it's evolving. It's very positive. And yeah, this was the memory which I told, allegation wale. This was the beautiful memory I had and I have carried on. Okay, amazing. So as I mentioned AI, so do you also use, AI in your video editing? Of course. Yes, regularly. And AI is being a very integral part of it. Okay. So आपने किसी AI में से ऐसे कौन सी चीज़ें आपने अप्लाई की है जो मे बी अभी नए एडवांसमेंट्स आए हैं एंड टेक्निकल जैसी चीज़ें आ रही हैं यू मस्ट बी अपग्रेडिंग मेनी स्टफ कैन टेल समथिंग अबाउट दैट सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्पेशली AI बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है एंड वेरी यूजफुल. द थिंग इज आप सोशल मीडिया मैनेजर होके कंटेंट कैलेंडर बनाओ और फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर होके एक फिल्म बनाओ. एवरीथिंग कैन बी डन ऑन AI. करेक्ट. VO3 Google. Okay. That is a video generation platform. VO Gen 3. Recently, a week back or so, I saw their post. Google का एक पोस्ट था जिसमें इंडियन वर्जन जो वीडियोस के होते हैं जैसे ट्रक्स हो गए, कुल्लड़ में चाय हो गई और नीटेड पूरे क्लोथ्स हो गए पूरे इन इंडियन स्टाइल पिचॉय आर्ट एंड एवरीथिंग. वो सारी चीज़ें उन लोगों ने प्रॉम्प्ट्स डाल के बनाए थे एंड दे हैड देयर carousel पोस्ट ऑन गूगल. ऐसे बात वीडियोस भी आ रही हैं आजकल इंस्टाग्राम भी. एग्जैक्टली. और वो सारी चीज़ अगर हम इसमें डाल रहे हैं ना तो गॉड नो वन नोज हाउ ब्यूटिफुल दिस AI like the creation of AI can go well and किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा आज के ज़माने में इतना AI एडवांस हो गया है कि एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज. एग्जैक्टली. एफिशिएंसी तो वो दे ही रहा है. वर्क एफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रहा है. आज अगर आप बोलोगे मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, सर को पिच करना है और ये मेरा आइडिया है, मैं आपको विद इन 5 minutes विद इमेजेस विद 3D मॉडल्स कैन गिव यू प्रेजेंटेशन इन विद इन 5 minutes थ्रू AI. And that too accurate information. But वो accurate information निकालने के लिए, वो presentation को उस तरीके से बनाने के लिए जो चीज़ चाहती है वो होता है text prompting. Text prompt. Everybody knows this basic thing. But right now text prompting के साथ साथ जो prompt engineers हो गए तो उसके लिए एक अलग job field ही बन गया है. That's right. So prompt engineers are doing very great. Till the time you are into content industry, please explore lot and lot of AI which will help you grow in many senses, be it voice, be it video, be it content, be it writing, be it blogs, be it anything, even your social media calendars, everything and anything can be done. Or to be very honest, off the record बात बताऊँ तो मैं सारे जो social media handles कर रहा हूँ उन सब का captions मैं ChatGPT से ही निकालता हूँ अभी. So yeah, that was a very good insight I can give as a filmmaker even. Yeah, right. Correct. So yeah. Okay, so a challenge that comes up with this is that many people are camera shy nowadays because ये एक emerging industry है, भी अभी आया है. So लोगों को बहुत camera shy होता है, उनको समझ नहीं आता, people get fumble. So what are the tips or something that they can practice to embed in themselves कि वो इस चीज़ को conquer कर पाए? फर्स्टली मिरर के सामने देख के बोलना शुरू करो. Okay. वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन थिएटर्स. सो जब आप मिरर के सामने देख के बोलना शुरू करोगे यू विल सी योर एक्सप्रेशंस, एंग्री, सैड, हैप्पी, तो वो सारे एक्सप्रेशन आपको दिखेंगे एंड देन यू कैन चेंज योर एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू योर मूड्स.
करेक्ट. तो कंट्रोल ओवर एक्सप्रेशन, फेशियल्स. सेकंड, कमांड ओवर वॉइस. जितना जोर से बोलोगे मिरर में आप देख पाओगे वो कि मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ या फिर हाँ शांत होके बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, राइट. तो वो चीज़ भी आप देख पाओगे. एंड देन एक्ट. तो फर्स्टली फेशियल एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज, सेकंड बोलने की एक्सरसाइज, थर्ड एक्ट. एक्ट में जो भी आप कंटेंट बनाना चाहते हो उसका एक डमी एक्ट करो, शूट मत करो, जस्ट एक्ट करो. तो वो एक्ट के साथ साथ यू विल गेट टू नो कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ. एंड बेनिफिशियल ये होगा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम में करना है तो डू वेयर दैट. आपको आपका कंफर्ट लेवल खुद को पता चलेगा करेक्ट. कि मैं कैसे, लाइक आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बट जैसे कोई भी फीमेल अगर शूट पे होती है तो देखती है मैं कैसे लग रही हूँ, ये वो, हाँ मैं लिपस्टिक एवरीथिंग दे चेक. ऑन पॉइंट होना चाहिए. या बट दैट थिंग इफ वी प्रैक्टिस तो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, विच इज़ वेरी नेसेसरी एज एन एक्टर और एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज एन इन्फ्लुएंसर. बिकॉज आज तुम बहुत अच्छे हो. If I say Prajakta Kodi, recently she visited KU and I witnessed her with my eyes, so I can take this example. She is too damn confident in real life, more than the YouTube videos which she makes, करेक्ट. right? तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आप 1000 लोगों के सामने भी ला सकते हो, तो वो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस आई कैन सजेस्ट ऑन ऑन doing content creation, acting, whatsoever things or task you want to do. Mirror के सामने you practice whatsoever. That's right. This was also one thing I wanted to ask you. हाँ. कि आप ऐसे एक्टर्स या फिर ऐसे लोगों से मिलो जो ऑन स्क्रीन तो everybody edits themselves कि this show what they want to show, but behind the camera वो actually कैसे होते हैं? Mostly same होता है, जैसे उनका बिहेवियर होता है सेम ही होता है. फेशियली भी लाइक फेस वाइज मेकअप होता है, सो स्लाइट डिफरेंस आता ही है बट मोस्टली सेम होता है. इतना कुछ होता नहीं है. पर ये मैंने मेल्स की बात करी, पर फीमेल्स में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि एनी स्किन टाइप इज़ बैड, ऐसा नहीं है कि एनी हाइट इज़ बैड, फिगर इज़ बैड. और फिगर का तो मैटर ही नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. 0 फिगर है तो क्या वो आइटम सॉन्ग करेगी? दिस इज द स्टीरियोटिपिकल थिंग्स. करेक्ट. तो वो आइटम सॉन्ग करेगी ऐसा बोलते हैं. भाई 0 फिगर है तो सुशील बहू भी दिखेगी, वाई नॉट? और आज के ज़माने में जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी इवॉल्व हो रहा है, ओबेसिटी का रेशियो कम है, लोग पतले हो रहे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल लाइफ पीपल आर फेसिंग. तो वो एक मदर और फादर के बाद एक चाइल्ड में कैरी होना ही है. तो अगर आप पतले हो तो वो बॉडी शेमिंग नहीं हुआ कि 0 फिगर है तो ये तो यही करेगा, वो तो वही करेगा, और एक स्टीरियोटिपिकल वे भी हो गया. करेक्ट. राइट. लोग नॉर्मली होते हैं बट ये चीज़ उसको डिफ्रेंशिएट करती है. आज अगर मैं मेकअप लगा के जा रहा हूँ, मैं तो मैं ही हूँ, मेरा कैरेक्टर अलग है. मैं पगड़ी पहन लूंगा, पंजाबी में बोल दूंगा 2 शब्द, ओए बल्ले बल्ले, ओए आवाज चेंज कर दूंगा, मैं पंजाबी दिखूंगा. करेक्ट. दैट्स राइट. बट इंसान वही हूँ. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स रादर देन जो आगे पीछे ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन के उस पे. आजकल स्किल्स कौन सी है जो एक इंसान के अंदर होनी ही चाहिए? एवरीथिंग. मल्टी टैलेंट. ओके. ये जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाला कॉन्सेप्ट अब गया. You have to be master of all and jack of one. उल्टा हो गया. जैक ऑफ वन क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको आनी तो चाहिए ही. उसमें मास्टरी नहीं चाहिए बट वो चीज़, एक चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए. मास्टर भले आप सब में घुस रहे हो और करना चाहते हो, एक बेसिक थिंग आ गई एंड देन यू आर सेटल्ड. ओके, अब एक्सप्लोरेशन नहीं रुकना चाहिए. that's what my personal take is from my life. Because if you stop exploring things, you will stop finding new opportunities. You will stop yourself by knowing, like self-growing and self-knowing about the things which you have heard but which you have not experienced. Got it.
ऐसा होता है कई बार कि मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करके जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेता मैं नहीं मानूंगा या मानूंगी. एक्सप्लोर करना पड़ेगा तो उसके लिए. सो या दैट इज द केस. Done. One last question I have from you, and that is कि जब आपने अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया तो बिकॉज दी ऑलरेडी प्री एक्सिस्टिंग जो है प्रोडक्शन हाउसेस दे वुडंट वांट कि आप उसमें एंटर करो, तो आपको ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपने उनसे कैसे डील किया? ये चीज़ मेरे साथ पार्शियली हुई है ओके. एंड बहुत ही स्मार्टली मैं इसमें निकला था. जब मैंने एंटर किया तब मैं बहुत ही मतलब न्यू ज़ीरो नॉलेज वैसा था, तो उस वक्त मैं असिस्ट कर रहा था. यस सर, ओके सर, जी सर, आप बोले वैसे सर 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 सर. देन जब मैंने प्रोडक्शन हाउस किया तब वो लेवल पे तो होगा नहीं, बट ऑब्वियस है बिकॉज आई वाज स्टडीइंग हियर. करेक्ट. सो धीरे धीरे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए, द नेम वाज डिफरेंट. बट देन व्हेन आई फिनिश्ड 5-6 प्रोजेक्ट्स एंड आई डिसाइडेड कि ओके अब फुल फ्लेजेड करेंगे, उस वक्त नाम कर लिया, रजिस्टर कर लिया और साइलेंटली काम करना शुरू कर दिया. आई डेंट फोकस ऑन दिस थिंग्स, दैट्स वाई आई वॉज पार्शियली इन्वॉल्व, पार्शियली नॉट. सो अभी तक मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ. टिल द टाइम आई एम साइलेंटली वर्किंग. करेक्ट. Now the break-even point came of this situation came when I joined a film. ओके. क्योंकि फिल्म में अगर आप एज अ डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर भी जाओ, यू नीड टू साइन एट द एंड ऑफ द फिल्म, बिकॉज वो सारा फाइलिंग होता है और वो आगे फिल्म बोर्ड में सबमिट करता हम लोग बिकॉज ऑफ सब्सिडीज एंड ऑल अदर रीजन्स. तो उसमें प्रोडक्शन हाउस प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ़ यू हैव सो. इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल देन इट्स सो. वहाँ पे ये चीज़ मुझे हिट करेगी, आपका प्रोडक्शन हाउस है कौन सा, ये वो क्वेश्चंस आए. वो क्वेश्चंस के हिसाब से फिर अप्रोच आने चालू हुए कि प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, ये करके देना है, वो करके देना है. ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स के अप्रोच आए. प्रोजेक्ट्स हो गए लेकिन पेमेंट्स नहीं आए. तो दिस वाज द थिंग वेयर आई स्टार्टेड फेसिंग इश्यूज ओवर द प्रोडक्शन हाउस का इन्वॉल्व होके आगे बढ़ना इन द इंडस्ट्री. नया प्रोडक्शन हाउस है, पैसे नहीं देने, काम करवा लो, काम अच्छा होगा तो आगे देखेंगे. दिस वाज द मेंटालिटी. और इसको ब्रेक करने के लिए आई काम्ड माई सेल्फ. जितने साइलेंट प्रोजेक्ट्स में कर रहा था वो मैंने किया असिस्ट करके. और फिल्म के लिए आई डायरेक्टली केम एज अ प्रोड्यूसर ओके. एंड आई प्रोड्यूस्ड अ फिल्म डायरेक्टली. वाओ. सबको ये करने की मैं जरा भी राय नहीं देता हूँ. ये मेरे पास थोड़ा सेविंग्स था, उससे मैंने किया. प्लीज़ डोंट जंप इनटू प्रोड्यूसिंग अ फिल्म डायरेक्टली. बहुत बैड एक्सपीरियंस था मेरा, टू बी ऑनेस्ट, एंड फाइनेंशियली वेरी स्ट्रेसफुल. बिकॉज जब अगर मूवी अच्छा ना परफॉर्म करे, नॉट लाइक दैट, अच्छा परफॉर्म ना करे दैट इज टोटली डिफरेंट केस. ओके. बट अगर मूवी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो और मूवी रिलीज ही नहीं हो पा रही है या because of some internal issues, because of distributor issues, so that is a whole different case and mental torture for you. So in my case, my movie got delayed for not one, but actually 2.5 years after making of it. that's a long time. And if we see total years, it took me 4.5 years to get it released in theaters. And I was a third producer, so I was not the main producer. I joined them. So पहले कोई फिल्म बन रही थी, उसमें मैं एज एन असिस्टेंट था. वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें फेस करी कि नया नया प्रोडक्शन हाउस ये हुआ है. एंड देन वो पैसे नहीं आए थे तब वहाँ से भी. एंड देन आई रियलाइज कि ओके क्या हो रहा है. फिर उन्होंने पेमेंट क्लियर किया, बात करने पे, रिक्वेस्ट करने पे, ठीक है. और बाद में पता चला कि फिल्म को रोक दिया गया बिकॉज ऑफ फंड इश्यूज. एंड दैट टाइम आई रियलाइज ओके सो दिस इज वेयर प्रोडक्शन हाउस गेट्स इन्वॉल्व्ड. वाइल दिस इज पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली नॉट. क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस का काम ये नहीं होता है टू प्रोड्यूस फिल्म्स. प्रोडक्शन हाउसेस का काम होता है सारा पूरा प्रोडक्शन देखना, बी इट दिस माइक्स, लाइट्स, ट्रॉलीज, कैमरास, एवरीथिंग. तो वो एक अलग, दैट इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. लेट्स नॉट जंप ऑन टू दैट, बट वी got an idea, right?
उस टाइम पता चलते आई बैक दैट अपॉर्चुनिटी एंड सेड कितने चाहिए, दिस अमाउंट, ओके कितने वापस करोगे, दिस इज द थिंग, दिस इज द पोटेंशियल एंड दिस इज द स्ट्रेटेजी हाउ वी विल गेट थिंग्स डन। Okay. ओके विद इन 3 days बात करी मेरे फादर से एंड ही ऑल्सो एग्रीड कि येस वी कैन टेक रिस्क ऑफ दिस मच अमाउंट, ऐसा तेरा सेविंग है तो ट्राई इट, इवन आई विल गिव यू, सो हाफ करते हैं। सो एज अ फादर ही वॉज वेरी सपोर्टिव, तो पापा के 50% और मेरे 50% करके वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट फिल्म। Okay. फिल्म शूट भी हो गई। नाउ अगेन नेक्स्ट टॉर्चर वॉज पैसे दे दिए, फिल्म शूट हो गई, अब रिलीज कैसे करेंगे, रिलीज के लिए और पैसे चाहिए। Oh damn. अब मैं जैसे प्रोड्यूसर एंटर हुआ एज अ प्रोडक्शन हाउस, तो 2 प्रोडक्शन हाउस ऑलरेडी थे, उन लोगों ने एक शेड्यूल ख़त्म किया, उसके बाद तीसरा प्रोडक्शन हाउस हुआ जिसने दूसरा एक शेड्यूल ख़त्म किया, अब फिल्म बन चुकी है 2 शेड्यूल में विद 3 प्रोड्यूसर्स। Mm-hmm. अब टेक्निकली इसका पार्ट 3 में डिवाइड होना चाहिए, लॉस प्रॉफिट व्हाटसोएवर, Correct. बट अब रिलीज के लिए भी पैसे नहीं है। सो 4th प्रोड्यूसर कम्स इन and he puts a agreement that last in first out, which is a term LIFO in film industry. Many people would be knowing, those who are in the industry, last in first out. There's a producer वो इन होते हैं और वो लास्टली आए, जितने भी अमाउंट चाहिए वो डालेंगे, सबसे पहला प्रॉफिट या सबसे पहली डील उस फिल्म की होगी, उसमें से उसका पैसा लेके वो बंदा निकल जाएगा। अब जैसे ही ये बंदा इन्वॉल्व हुआ, मेरा एज अ प्रोडक्शन हाउस, मेरा एज अ प्रोड्यूसर वहाँ पे लेवल गया एक हायरकी में डाउन। Down. Correct. अब उसका लीफो है, वैसे मेरा भी लीफो था, तो उस वक्त मुझे जो प्रॉमिस किया वो सेम प्रॉमिस यहाँ पे भी हुआ है। Transfer. अब कैसे करेंगे, ट्रांसफर नहीं हुए, सेम प्रॉमिस उनको भी दिया और मेरे को वो कंटिन्यू रखा कि नहीं नहीं तुम्हारा भी कर देंगे, तुम्हारा भी कर देंगे। मैं बोला ओके, व्हाट्स द स्कोप, 100% में से 50% स्कोप हो गया, राइट। फिल्म रिलीज हुई, अभी रिलीज के टाइम प्रीमियर होता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एनी कंट्रोवर्सी हियर, बट दिस इज द फैक्ट, सो नो वन कैन डिनाई इट। अब रिलीज हो गई फिल्म, प्रीमियर हो गया है, प्रीमियर के लिए भी पैसे चाहिए क्योंकि पूरी इंडस्ट्री आएगी। वी हैव टू शो व्हाट वी हैव मेड, वी हैव टू बुक स्क्रीन्स, वी हैव टू हैव अ रेड कार्पेट इवेंट जिसके लिए हम वेलकम में सब करेंगे, एवरीथिंग विल बी डन, PR होगा, सब होगा। तो जहाँ पे डील हुई थी, नाउ वी हैव OTT प्लेटफॉर्म रेडी मीनवाइल, तो हमने जहाँ पे डील करी थी तो हम चारों प्रोड्यूसर्स उनके साथ बैठे थे एंड दे वर अग्रीड अपॉन प्रीमियर करने को, बट देन इट गॉट माल फंक्शन Okay. और समवेयर सम मिसकम्युनिकेशन हैपेंड, मे बी नॉट, बट प्रीमियर वाज सो डल एंड लो कि फिल्म रिलीज हुई है वही पता नहीं चला। एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मेकर ना बोलूँ तो भी वो फिल्म का पोटेंशियल इज वेरी नाइस। एज अ गुजराती ऑडियंस इफ आई सी ओनली, दैट फिल्म वेंट अंडररेटेड। और ये हमारी फिल्म है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी 10-15 फिल्म की लिस्ट मेरे पास अभी मुंह ज़बानी है, राइट, तो जो बहुत ही प्यारी है, बट लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा फिल्म रिलीज हुई है। एंड दैट्स व्हाई प्रोड्यूसिंग अ फिल्म इज अ वेरी रिस्की थिंग व्हिच यू शुड नॉट डू ब्लाइंडली। इससे मुझे ये सीखने को मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जो लोग थे वो फ्रॉड थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जो लोग थे वो काम नहीं कर रहे थे या कंजूस थे, बट दे ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट, वी ऑल्सो ट्राइड आवर बेस्ट। बट वहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हो गई कि डिलेड रिस्पॉन्स जहाँ पे होता है ना, या मिसकम्युनिकेशन होता है ना, तो वहाँ पे पूरा गेम चेंज हो जाता है। करेक्ट। तो फिल्म इंडस्ट्री में रह के अगर आप लोग मिसकम्युनिकेशन या फिर डिले कर रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट पंक्चुअल अबाउट योर टाइमिंग, यू आर एट लॉस, अ वेरी बिग लॉस, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट मेंटली ऑल्सो। अब वो फिल्म प्रोड्यूसर हो गया, वीडियो एडिटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, एक्टर हो गया, एनीवन, सबका कलेक्टिवली, सबका कलेक्टिवली फिल्म बनने के बाद भी, राइट, दैट्स राइट। सो वेरी ह्यूज इम्पैक्टेड प्लेस। तो दिस इज द थिंग, ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन हाउस में एंटर करने में मुझे थोड़ा हर्डल आया, बट या ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिल्म रिलीज हुई, 1 वीक पूरी चली
ऑडियंस जिन्होंने देखी है फिल्म दे लव्ड इट Okay. एंड इट वाज वेरी वेल अप्रिशिएटेड. तो आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दैट कि चलो ऑडियंस को पसंद आई है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सपेक्टेशंस आई वाज हैविंग. That's true. और वो चीज़ मे बी नए प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे वो भी सेम नए प्रोडक्शन हाउस है. सो दिस वाज द मेन And this was your first. टर्निंग पॉइंट. या So very good job for your first, project. thank you that we finally released it back in February. So yeah, we are happy. But जो मैंने बताया ना, तीनों प्रोडक्शन हाउस जो नए थे ना, उनकी वजह से लाइक वो एक टर्म आ जाता है कि नए लोग हैं, उनकी वजह से जो फिल्म को दबाई गई है. दैट्स व्हाट आई फील. बाहर से जो ग्रुपिज्म वाला मैंने पॉइंट बताया पहले, That's it. I feel that. So this is how a production house Actually, gets hampered, yeah. but हाँ, ups and downs, तो part and parcel of life. या तो सीख रहे हैं, करेंगे अभी और फिल्म्स करेंगे. ऑलरेडी 2-3 फिल्म्स सोच रहा हूँ मैं. wow, that's होपफुली मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करूँ यहाँ से. So I had a word with many educational educators, and I'm trying to make जैसे public funded होती है वैसे public made film I'm trying. So this is an approach that I'm doing. Let's see how it goes. That's actually smart, people would actually take initiative with. Exactly, and they will get involved in the process. Correct. They'll get to know everything Yeah, and very transparently because they will be part of it. correct. That's right. Or yeah, that's the future prospect which I'm looking forward after this. That's amazing. Yep. So that's all from my end for today. Thank you so much for being here. Wish you much luck for your upcoming projects. Thank you so much. Thank you. It was very nice having you even as a host. And you as a guest. Thank you. And thank you so much Karnavati University to allowing me to show the real colors and the journey of filmmaking here.